dear profiteers and all our members and subscribers, investors. Warm welcome to this new video on CDSL. I think in our quest for new companies, we are now looking at, clearly I'm telling you, we are looking at monopoly businesses. From the beginning, our target is companies which have more than 60% market share. But उसमें भी अगर आप blue chips ले आएँ and market leaders ले आएँ तो that's the best combination. Anyway, standard disclaimer, any advice, stock tips, mutual fund advice or anything related to investment that you hear on this channel is completely from an educational point of view. The channel or me personally don't take any responsibility for any of the decisions made by its viewers. You feel free to ask us and then take a call, or you can feel free to ask your registered investment advisor and then take a call with your investments. Our content, our educational program and everything on the channel is available. Most of it is for free and it's for awareness, for the investor awareness in the larger interest of the investors. Now with this disclaimer out, I would like to focus on this stock, which is Central Depository Services Limited, NSDL and CDSL. This is a clear market with only these two people holding the entire depository participant interest. अभी इसका मार्केट कैप अगर हम लोग देखेंगे तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है. Very interestingly placed market cap. And ROC and ROE I like 32%. It is growing up, by the way. I'll show you it's growing every year. ROE, return on equity, is 25%. It's actually mouth watering. Face value of 10 rupees. As we all know, CDSL का core business क्या है? What do they do? CDSL India operates as a securities depository in India. The company offers service for a range of clients such as DP and other capital market intermediaries. मतलब आप और हम जब शेयर खरीदते हैं तो आपको एक ईमेल आता होगा सर्विसेज का और मंथली स्टेटमेंट भी आता होगा इनका. तो इंडिया में कहीं भी आपने रजिस्टर्ड कोई भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जब शेयर लिए हैं तो उसमें दो ही सर्विसेज हैं, एक CDSL है और एक NSDL है. दोनों में से एक में जहां आपका ब्रोकर रजिस्टर्ड होगा उसके हिसाब से आपको मंथली स्टेटमेंट भी आएगा, प्लस NSDL का या CDSL का जो भी जिसमें भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका एक फुल स्टेटमेंट आता है कि कितने आपके फंड्स हैं, कितने आपके स्टॉक्स हैं. सो दे एक्ट लाइक अ सपोर्ट फंक्शन है एंड डायरेक्ट रेवेन्यू इनको मिलता है. जितने ज़्यादा, इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, बिकॉज हमारे चैनल द प्रॉफिट कर्व का लोगो है, हमारा मोटो है दैट वी सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स थिंग्स फॉर आवर इन्वेस्टर्स. हम लोग जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई करके आसान भाषा में आपको बताएंगे. सो बेसिकली जितने मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे CDSL का रेवेन्यू बढ़ता रहेगा. द मोर इन्वेस्टर्स द मोर रेवेन्यू फॉर दीज गाइज. Simple. Book value is 83, currently trading at 990 around levels. थोड़ा high price पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल. As you can see, 1 year it has seen a consistent move. देखिए स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन जब से बढ़ा है लास्ट ईयर से, पैंडमिक के बाद से, मार्च 2020 के बाद से कंसिस्टेंटली इसका मूव देखिए. 274 लास्ट ईयर इन जून से लेके 990 लेवल्स तक. वन वे 4 टाइम्स का ग्रोथ है. लेकिन अब मुझे लगता है ये थोड़ा ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया है. तो अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो थोड़ा आपको मैं बताता हूँ क्या लेवल्स ट्रैक करने पड़ेंगे. कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री. द बेस्ट पार्ट अबाउट द कंपनी इज़ कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग इनके नंबर्स हैं. अगर आप देखें इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, अगर नेट प्रॉफिट देखें जो हम लोग यूजुअली आपको दिखाते हैं और ट्रैक करते हैं, सो if I look at last 5 or 6 years, even March 2021 is loaded here, so it has actually more than doubled in the last 6 years. 91 से लेके 200 तक गया है नेट प्रॉफिट, विच इज़ एक्सेलेंट एंड कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड. लेकिन जैसा आप देखते हो लास्ट ईयर में ये डबल हुआ है क्योंकि बहुत सारा रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट्स में बढ़ा है, अकाउंट्स नए खुले हैं, तो CDSL को नया काम मिला है ऑब्वियसली, and it has grown. Profit growth 15% है, which is good for the last decade, even though मतलब डेकेडल ग्रोथ में 15% अच्छी ही मानी जाएगी.
सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम है, 14% है, बट दैट्स फाइन। आई थिंक इट्स अ ग्रोइंग फ्रेंचाइज, इसके लिए ये हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ मुझे देखिए अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है, नो बोरोइंग्स। इनका बोरोइंग्स देखिए ज़ीरो का ज़ीरो ही है फॉर ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रोथ। एंड इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो देखिए बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस इज़ वन ग्रेट थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस कंपनी। बोरोइंग ज़ीरो है, इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है। सो आप देखो इनके जो एसेट्स ये लोग बिल्ड कर रहे होंगे, डिजिटल एसेट्स, आई एम श्योर दे आर इंक्रीजिंग इट। ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस है ये, ऑलमोस्ट एक तरह का मोनोपोली पे ही चलता है, क्योंकि CDSL के अलावा ऐसा और कोई अभी तक डिपॉजिटरी क्लेम तो है नहीं कि हम, इट्स नॉट लाइक अ ब्रोकरेज सर्विस कि देखिए इंडिया में ब्रोकरेज की मोनोपोली भी है। वी हैव अ ब्रोकर विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मोनोपोली, लेकिन उसका भी 60-70% मार्केट शेयर है। लेकिन ये इस तरह की सर्विसेज में आपको ब्रोकर्स की तरह अंधाधुन कंपनीज नहीं मिलेंगी कि 100, 150, 200 कंपनी सेम काम कर रही है। दिस इज़ ओनली टू, ओनली CDSL एंड NSDL, और उसमें भी CDSL इज़ द ओनली लिस्टेड प्लेयर। अभी तक के लिस्टिंग में तो CDSL ही है। डेटर डेज थोड़े इम्प्रूव हुए हैं विच इज़ गुड। ROCE मुझे लगता है कंसिस्टेंट है, यहाँ थोड़ा ड्रैग हुआ था, लेकिन वही लास्ट 6 साल की जो पिक्चर मैं देख रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ वो काफ़ी कंसिस्टेंट लग रही है इन ऑल मेट्रिक्स इंक्लूडिंग ROCE, इट्स ग्रोइंग। सो यहाँ तक की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है CDSL। इफ़ वी लुक एट टेक्निकल पैरामीटर्स तो मुझे ये दिखेगा कि जैसा मैंने आपको कहा, आई हैव अ गट फीलिंग दैट ये थोड़ा ओवरबॉट टेरिटरी में लग सकता है। आज भी इसकी क्लोजिंग, टुडे वी आर ऑन 29 जून, इसकी क्लोजिंग तो 0.75% डाउन ही हुई है, बट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बाय मोमेंटम है सब जगह से। हर लेवल पे इसमें बाय कॉल है। लेकिन RSI देखिए ये जो है ना, ये हेल्दी नहीं है, यहाँ ओवरबॉट टेरिटरी क्लियर कट मुझे दिख रही है। तो अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या लेवल्स इसमें लग सकते हैं, बट ये भी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। इसमें ट्रेडिंग करने से अच्छा इसको लेके रख देना एट एनी प्राइस। अगर आप लॉन्ग टर्म है, 5 साल की या 10 साल की अवधि है, वी फील एज पर आर एनालिसिस को लेके रख देना ज़्यादा सेंसिबल चीज़ होगी। इसमें ट्रेडिंग के हाईज एंड लोज आपको शायद बार बार नहीं मिलेंगे, पोजिशनली भी कॉल देना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त जो मेरे पास है डेटा उस हिसाब से हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो 922 इज़ अ पिवट हियर। जब तक 922 को ब्रेक ना करे तब तक तो मुझे लगता नहीं इसमें डाउन साइड आएगा। और जैसे आप देख रहे हो 980 990 के रेंज में चल रहा है, रेंज बाउंड है। तो 922 का मतलब करीब 9% या 8% का इसका फॉल तो मुश्किल है CDSL में आना। दैट मीन्स अब हमें ऊपर की तरफ ही देखना है कि 1013 ये जो इसका रेजिस्टेंस है, अगर ये 1013 क्रॉस कर लेता है तो आप 1070 के दूसरे रेजिस्टेंस तक जा सकते हैं। इसका मतलब बाइंग रेंज के हिसाब से अगर RSI थोड़ा 60s या 70s में भी आ जाए, then I think it's a good range to buy. But still, if you see even after this range bound buying, ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही आपको सही पड़ेगा, ना कि शॉर्ट टर्म। पोजिशनल में इससे बेटर स्टॉक्स हैं जो मैं आपको टाइम पे बताता रहता हूँ, बट इसके भी रेजिस्टेंसेस काफ़ी क्लोज हैं, तो स्प्रेड आउट नहीं है। मंथली लेवल हम देख रहे हैं, फिर भी रेजिस्टेंस बहुत क्लोज हैं इसके। अनदर थिंग विच आई लाइक अबाउट द कंपनी, जो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जब मैंने देखा, क्योंकि पूरा डिजिटल बिजनेस है ना, सो डिजिटल और फिज़िकल बिजनेस में ये बहुत अच्छी बात होती है डिफरेंस, कि डिजिटल में यू हैव टू स्पेंड वन टाइम और कमाना है आपको ज़िंदगी भर, लेकिन फ़िज़िकल एसेट्स में बार बार आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगाते जाओ और रिटर्न ऑन कैपिटल के साथ उसको कम करते जाओ। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, सिस्टम सेट हो गया, तो उसको सिर्फ अपग्रेड करना है आपको, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं। नेट प्रॉफिट मार्जिन, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ अ कंपनी विद अ नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 58%? आई मीन दिस इज़ रिमार्केबल, देयर इज़ नो अदर कंपनी विद अ मार्केट कैप ऑफ 10,000 करोड़ के मार्केट कैप में मुझे इतना बड़ा नेट प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत कम मिलेगा आपको, हार्डली। सो ये एक अच्छी बात है। प्लस इसका जो मैं एनुअल ग्रोथ भी देख रहा हूँ, जैसे आपने लास्ट 6 साल में देखा, प्लस ये देखिए ना, टोटल रेवेन्यू डबल होता हुआ दिखा है लास्ट 1 साल में, एंड अब रेवेन्यू के साथ साथ इसका नेट इनकम भी डबल ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रहा है। तो आई कैन सी दैट अच्छे जोन में इसको हम लोग पकड़ रहे हैं अभी,
क्योंकि जैसे ही कंपनी ने आउट परफॉर्मेंस करना शुरू किया तो अपने रेडार में इस तरह की कंपनीज नॉर्मली यूजुअली आ जाती हैं. सो विथ CDSL आवर कॉल इज़ पोजिशनल से ज़्यादा इसको पोर्टफोलियो में रखिए और रहने दीजिए, इसको टैम्पर मत करना. अगर इसको बाय करेंगे इट माइट गिव यू 15% ग्रोथ एवरी ईयर. ये 15% हर साल सालाना ग्रो करेगा, लेकिन इससे आप बहुत ऐसे वास्ट उम्मीद मत रखिए कि ये इट्स नॉट लाइक अ पॉली कैप और लाइक यू नो विनती ऑर्गेनिक्स के जैसा नहीं है. ये स्लो एंड स्टेडी मूविंग एक आपका, लेकिन कमा के देगा आपको. दिस इज़ नॉट अ लूजिंग स्टॉक, ये ग्रो करने वाली कंपनी है. ऑलराइट, I wish you all the best and I'll see you around in the next video. Keep profiting, guys.